جناب غلام یزدانی صاحب، چیئرمین پبلک گارڈن ورکرز ایسوسیشن، پرشوتم صاحب اور دوسرے ممبران مینیجنگ کمیٹی اور حاضرین جلسہ اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس اور میرے کچھ مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں، میں سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین، جیسے آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کے فضل سے یہ دوسرا لیکچر ہے میرا یہاں پر۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں یہاں پر لیکچر دیا تھا، وہ تھا لائف اسٹائل مینجمنٹ، روڈ ٹو ہیلتھ اینڈ ہیپینیس، طرز زندگی کے اوپر لیکچر ہوا تھا۔ اور یہ دوسرا لیکچر ہے جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر، جو امراض ہیں ہم اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، لیکچر سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عام طور پہ 99% جو لیکچرز ہوتے ہیں میرے وہ انگریزی میں ہوتے ہیں۔ میری بنیادی تعلیم اردو میڈیم سے بھی، مگر پچھلے 20 سال سے جو تدریس کا جو معاملہ ہے وہ انگریزی میں ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لینگویج جس طریقے سے بات کرنا چاہیے، جو تلفظ اور تسلسل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی کیا ہے معلوم امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ سمجھ سکیں۔ اور ایک بات میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت پروفیسر ہیلتھ کیئر مینجمنٹ پڑھاتا ہوں حیدرآباد اور ہندوستان میں دوسرے شہروں میں۔ بیسیکلی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا جو کیریئر اسٹارٹ ہوا B.Com سے ہوا ہے، اس کے بعد پچھلے 15 سال سے ایک کورس ہے MBA ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، جس میں پڑھاتا ہوں ہیلتھ اکنامکس اور پبلک ہیلتھ۔ کیونکہ میری MPhil اور PhD یہ ہاسپٹلس کے اوپر بھی ہے، اس وجہ سے زیادہ تر ٹائم ڈاکٹرس اور ہاسپٹلس کے درمیان گزرتا ہے۔ جیسے یزدانی صاحب فرما چکے ہیں کہ پچھلے بھی کچھ رانچی میں کلاسز تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، وہاں سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو MD کورس ہوتا ہے وہاں پر کچھ کلاسز تھے۔ تو میرا تعلق بحیثیت ڈاکٹر نہیں تھا، اور اللہ کے فضل سے جو ہندوستان اور دنیا کے جو بہترین ڈاکٹرس ہیں ان کے ساتھ پچھلے 10-15 سال سے رہنا اور ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ حیدرآباد سے اگر شروع کرا تو وہ ہے ڈاکٹر حیدر خان، شکیل حیدر خان، جو کارڈیالوجسٹ ہیں پچھلے 15 سال سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ تو سفر شروع ہوا میرا 1996 سے، جب یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ہاسپٹل میں، OAC ہاسپٹل میں، اور میں وہاں پر میں اسٹیبلش کر رہا تھا ہاسپٹل مینجمنٹ کالج۔ اس کے بعد تعلقات رہے نارائن گودالے ہاسپٹل، جو ہندوستان کا نمبر 1 ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی کے اندر۔ تو وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر دیوی شیٹی، ان سے بھی تعلق رہا۔ اس کے بعد دلی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ویدانتا ہاسپٹل، جس کے ڈاکٹر ہیں نریش تریہان، جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی جو کمیٹی ہے ہیلتھ کیئر کی، اس کے چیئرمین ہیں وہ نریش تریہان۔ اسی طریقے سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وہاں کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈاکٹر شکتی گپتا، جو ہاسپٹل کے پورے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے انچارج ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی وہی سلسلے میں گیا تھا۔ تو یہ میرے محدود معلومات اور تجربے کی بنا پر میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ویسے میں بول چکا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، پھر بھی جو تجربہ رہا ہے، جو معلومات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے، ورنہ ہم اگر نہیں رہیں گے تو بعد میں اس کی اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی کہ جو علم تھا، جو معلومات تھے، وہ کیا ہے، آپ دوسروں کو نہیں پہنچا سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوئی کہ عام طور پہ جو رجحان ہے، جو انگریزی میں کہتے ہیں سنڈروم، آدمی کا کہنا ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔
ہمیں سب معلوم ہے, ہمیں سب جانتے ہیں اس میں تقریباً کیا ہے, زندگی اس میں ختم ہو گئی ہے, خاص طور سے ہیلتھ کے تعلق سے. جہاں بھی میرے لیکچر ہوتے ہیں ہندوستان میں اکثر ریفرنس دیتا ہوں کوئی ریلیجیس بکس کا, رامائن, مہابھارت اور بائبل اور قرآن کا. جہاں تک سیکھنے کا اور لرننگ کا تعلق ہے, بہت سے لوگ انٹلیکچوئل ہیں. ایک میں مثال دے کر شروع کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک رامائن کا تعلق ہے, پروشوتم جی یہاں سے بہت سے ودوان ہیں, معلوم ہے میں رامائن میں جو پورا جو ایپیسوڈ ہوا ہے رام, لکشمن, سیتا, ہنومان اور راون کے بارے میں ہے. اور پورا آپ کو معلوم ہے کہ کیا راون وہ سیتا کا اپہرن کرتے ہیں اور وہ سیتا کو لنکا کو لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں رام, لکشمن اور ہنومان ویسے آخرکار لنکا پہ وہاں پر جیت حاصل ہوتی ہے اور سیتا کو واپس لاتے ہیں. اس رامائن میں ایک واقعہ ہے کہ جب پوری جنگ ختم ہو جاتی ہے, جب راون وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے, وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے, تو اس دوران رام چندر جی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں لکشمن سے کہ دیکھیے جو راون جو ہے وہ ایک بہت ہی انٹلیکچوئل آدمی ہے. راون کا بیک گراؤنڈ اگر یہاں کچھ ودوان لوگ ہیں جانتے ہیں تو وہ ایک براہمن تھے اور وہ تھے لارڈ شیوا کے بھکت تھے. لارڈ شیوا جو رامائن اور مہابھارت میں معلوم ہے جو پاورفل گاڈ ہے, تو ان کے بھکت تھے اور ان سے کچھ ایسے اثرات اور ایسا پاور حاصل ہے جس کو لنگ کہتے ہیں. وہ دنیا میں کچھ ایسے چیزیں کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. وہ پاور راون کو حاصل ہوتا ہے اور وہ لارڈ شیوا کے بھکت رہتے ہیں. تو رام چندر جی کا کہنا رہتا ہے کہ دیکھیے اب وہ ختم ہونے والے, اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں آپ چاہیے اور اس کے بعد بہت ہی نالج ہے اور وزڈم ہے وہ حاصل کرنا چاہیے, ورنہ اگر وہ ختم اگر ہو گئے تو وہ بہت بڑا لاس ہو جائے گا دنیا میں. تو لکشمن کا کہنا رہتا ہے کہ ارے بھائی وہ تو ایروگینٹ ہے, مغرور ہے, میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تو ہم اس سے جنگ کی ہے اور وہ ہرا چکے ہیں اور وہ مرنے والا ہے. تو رام چندر جی کا کہنا تھا نہیں, اس کے باوجود بھی میری گزارش ہے, سجیشن ہے کہ آپ جائیے, جا کے اس سے بات کیجیے اور کچھ سیکھیے. تو جب لکشمن جاتے ہیں, جا کر بات کرتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ آپ بہت بڑے ودوان ہیں اور میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ راون جو ختم ہونے والا رہتے ہیں, دیکھتے ہیں صورت دیکھ کر کچھ بات نہیں کرتے ہیں, ہم چپ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کے بعد جب رام چندر جی کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے کیا ہوا, کچھ سیکھے کیا؟ تو بولتے کہ میں بولا نا وہ مغرور آدمی ہے, تکبر ہے, ایگو ہے, وہ کچھ بات نہیں کیا مجھ سے. تو رام چندر جی پوچھتے ہیں کہ کیا معلوم کہ آپ کیا کیے جا کر؟ تو میں گیا تھا, جا کے ٹھہرا, میں کچھ مخاطب ہوا مگر وہ بات ہی نہیں کرا. تو پوچھتے کہ کہاں ٹھہرے آپ؟ تو وہ لیٹا ہوا تھا, تو میں اس کے سر کے پاس ٹھہرا, ٹھہر کے بات کر رہا تھا. تو وہ بولے کہ اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے, اگر کسی سے حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم کیسا حاصل کیا جاتا ہے. رام چندر جی بولتے ہیں کہ بھائی کو آپ دیکھیے, وہ جاتے ہیں, جب راون سو کر رہتا تو اس کے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں لارڈ آف لنکا, میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں لنکیشور. مجھے معلوم ہے کہ ایشور نے اور لارڈ شیوا نے کچھ ایسے چیزیں آپ میں دیے ہیں جو شاید دنیا میں کسی کے پاس ہے اور میرے خود کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی زندگی کے چند آخری لمحات چل رہے ہیں, تو آپ سے چاہتا ہوں کہ کچھ اگر علم ہے تو دے دو اور پوری دنیا کو کام آئے گا ہو. تو جب راون بات کرتا ہے, رام سے اور کہتا ہے کہ بہت خوب, اور مجھے آج میرے کو میں ریگریٹ فیل کر رہا ہوں, گلٹی کانشیس فیل کر رہا ہوں کہ میں اتنا طاقتور اور اتنا بڑا آدمی تھا, مگر کیا ایک معمولی سی لڑائی اور جنگ کے اندر پورا لنکا تباہ ہو چکا ہے اور میری بھی جان جا رہی ہے. اور مجھے شیوا نے بہت سے ایسے لنگ دیے تھے, میں جو لوگ کام نہیں کر سکتے تھے میں وہ کام کر سکتا تھا. مگر جب میں ختم ہو رہا ہوں تو ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ دنیا میں جتنے خراب چیزیں ہوتے ہیں وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے خراب چیز ہوتے ہیں وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے آدمی امپیشنٹ ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنے اچھے چیزیں ہوتے ہیں وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتے ہیں اور آدمی اس کے طرف راغب نہیں ہوتا ہے. تو اس کی مثال میں دیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں سیتا کو دیکھا, وہ آپ کی بیوی ہے, میں اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر میں اٹریکٹ ہو گیا اور اس کا اپہرن کیا. میں شاید اگر میں
सीता को देखे बगैर मैं आपको देखता, अगर आपसे मेरी मुलाकात होती तो ये हालात नहीं होते थे। मगर आप में कोई अट्रैक्शन नहीं था और मैं आपके तरफ राग़िब नहीं हुआ। तो मिसाल ये है, दुनिया में जितने भी अच्छे चीजें होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। बात हो रही सेहत की। सेहत एक ऐसी चीज है जो क्या है मालूम, हम अट्रैक्टिव नहीं होते उसके पीछे। हमें हर एक चीज के लिए टाइम है हमारे पास, सेहत को छोड़कर। बचपने में पढ़ाया गया है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ, मगर हम बड़े होकर वो चीज को भूल चुके हैं। आज का मैं कुछ डिस्प्ले करना चाह रहा था, बदकिस्मती से क्या है कुछ करंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मगर फिर भी आमतौर पे मेरे लेक्चर्स बगैर डिस्प्ले के होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चंद वाक़यात है मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक मौसूफ का नाम था रंजन दास, जो है SAP के प्रेसिडेंट है। SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। वो सॉफ्टवेयर के प्रेसिडेंट थे। तो वो 21 अक्टूबर 2009 को 42 साल की उम्र थी। वो एक जिम में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया 42 साल की उम्र में, और वो जिम में से एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरे शख्स का नाम लेना चाह रहा हूं मैं, दिवांग मेहता। दिवांग मेहता ये हिंदुस्तान के जितने सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके सदर है। तो उसके सदर वो एक इंडिया का डेलीगेशन लीड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, जब इंडिया गवर्नमेंट थी, प्रमोद महाजन के साथ सिडनी में थे मिनिस्टर के साथ। तो वहां पर इंडिया को लीड कर रहे थे। तो पूरा वो कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब पूरे लोग सिडनी के एयरपोर्ट पे गए हैं, तो जब एयरपोर्ट में बैठ चुके थे तो ये दिवांग मेहता एयरपोर्ट वो फ्लाइट मिस कर चुके थे। उसके बाद मालूम करें कि क्या हुआ, क्यों फ्लाइट मिस करे। जब होटल को कांटेक्ट किया गया तो उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या है होटल के बाथरूम में पड़ी हुई थी, और उनकी उम्र थी 51 साल। ये दूसरा वाक़या है, ये 11 अप्रैल 2011 को हुआ था सिडनी में। और उसके बाद तीसरी मिसाल मैं देना चाह रहा हूं, डॉक्टर नीतू मडिके। डॉक्टर यहां पर है, डॉक्टर हैदर खान साहब, हिंदुस्तान में नंबर 1 कार्डियक सर्जन रह चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके बारे में एक आर्टिकल आया था कि वो अपनी प्रोफेशन के अंदर जो वाइट इनकम होती है वो 1000 करोड़ रुपए कमाए थे, 1000 करोड़। और इंडिया के जितने VIP थे वो सबका कार्डियक ऑपरेशन इंक्लूडिंग बाला साहब ठाकरे का करे थे। तो जब 2000 में जब बाला साहब ठाकरे को जब ऑपरेशन करना था तो देख रहे थे कि कौन करना चाहिए, तो उसमें नीतू मडिके का नाम आया। तो जब वो ऑपरेशन करके सक्सेसफुल हुआ तो उनको एक 2 एकड़ लैंड बॉम्बे में मिली थी। वो अपना खुद का दवाखाना अंधेरी में खोले, दवाखाना बहुत ही बड़ा बनाए, पूरे चीजें बना चुके थे और इक्विपमेंट वगैरह आ चुके थे। इनाग्रेशन करना था, कुछ सरमाई की कमी थी। तो वो स्टेज में आकर जब वो अपनी मर्सिडीज बेंच पे जा रहे थे बॉम्बे में, वो अपनी फीमेल सेक्रेटरी बैठकर थी, तो वो गाड़ी चला रहे थे तो मैसिव हार्ट अटैक हो गया। तो उनकी उम्र 51 साल थी। बदकिस्मती से उस रोज कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी सोसाइटी की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दुनिया के माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट कैलिफोर्निया में थे। जब इनको हार्ट अटैक हुआ, हिंदू जो हॉस्पिटल को गए, वो अपने आप का इलाज खुद करना चाह रहे थे, मगर वो कोमा में गए। जब पता चला पूरी दुनिया को, तो कॉन्फ्रेंस में से दुनिया के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट आए, हिंदूजा हॉस्पिटल उनको बचाने की कोशिश करे। एक तकरीबन 24 घंटे कोशिश करे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये नाम था नीतू मडिके। तो बात यहां पर ये है कि ये जो नुकसान हुए हैं, ये नुकसान तो इंडिविजुअल नुकसान नहीं है। ये जो नुकसान है एक फैमिली का है, एक कम्युनिटी का है, एक सोसाइटी का है, एक नेशन का है। अगर मेरे खुद का भी अगर मामला है, अगर आप ठहर के यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूं, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कई लोगों का है, मेरे वालिदैन का, मेरे टीचर्स का, मेरे रिलेटिव्स का, सोसाइटी का और कम्युनिटी का, नेशन का। तो जहां तक मेरी जिंदगी का ताल्लुक है, मेरे अलावा
میں سب کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. اس نقطۂ نظر سے میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ صحت بہت ضروری ہے اور جو زندگی ہے وہ ہماری امانت کے علاوہ دوسروں کی بھی امانت ہے اور ہماری زندگی دوسروں کے سے بھی اکاؤنٹیبل ہے. تو اس چیز سے میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا پروورب ہے انگریزی میں an ounce of prevention is worth a pound of cure. اگر پریونشن پہ اگر آپ فوکس کرنا چاہ رہے تو آؤنس اور پاؤنڈ کا فرق جو انگریزی میں ہے وہ آؤنس ایک حصہ ہوتا ہے, پاؤنڈ 16 حصے ہوتے ہیں. اس کی مثال ہے 1 آنا اور 16 ہے. آؤنس پہ اگر پریونشن جو ہوتا ہے اگر آپ 1 آؤنس اگر اسپینڈ کر رہے ہیں تو کیور کے لیے اگر آپ پریونشن پہ فوکس اگر نہیں کریں گے تو کیور کے لیے آپ کو 16 آنے کی ضرورت پڑے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پریونشن پہ اگر آپ فوکس کرنا چاہ رہے تو 1 روپیہ خرچ ہوگا, اگر کیور پہ اگر خرچ کرنا چاہ رہے تو 16 روپے خرچ ہوں گے. یہ مثال ہے اور یہ ہیلتھ کیئر میں کیا ہے معلوم, اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی. اور خاص بات یہ ہے بہت سے لوگ پریونشن کے اوپر دھیان دیتے ہیں, وہ اسمارٹ تھنکنگ ہے, انگریزی میں کہتے ہیں اسمارٹ تھنکنگ. مگر بدقسمتی سے اسمارٹ لوگوں کی کمی ہے, خاص طور پہ ہیلتھ کے تعلق سے. جو اسمارٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے وہ پریونشن پہ جاتے ہیں, جو اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے وہ کاہلی کر کے اپنی جو صحت ہے اس کو خراب کرتے ہیں. یہ تھوڑے مثالیں ہیں. اب میں کچھ حالات پورے دنیا کے بولنا چاہ رہا ہوں. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے 2009 میں جو رپورٹ آئی ہے, رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا 100 میں سے 66 لوگوں کا جو انتقال ہو رہا وہ کرونک ڈیزیز سے ہو رہا. اس کا مطلب وہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہو, کرونک ڈیزیز. کرونک ڈیزیز میں کارڈیالوجی ہے, نیورولوجی ہے اور نیفرالوجی ہے, ایسی چیزیں جتنے سپر اسپیشلٹی پرابلم ہے اس وجہ سے کیا ہے معلوم لوگوں کا انتقال ہو رہا. اور 66% لوگوں کا انتقال یہ کرونک ڈیزیز سے ہو رہا, ورنہ وہ لوگ کیا ہے معلوم اور زیادہ جی سکتے تھے. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. اور اس کے بعد دنیا میں خاص طور سے یورپ میں سب سے بڑی ایپیڈیمک جو وبا پھیل رہی ہے وہ اوبیسٹی کی ہے. اوبیسٹی کی انگلینڈ میں ہر 4تھا آدمی کو پرابلم کیا ہے, اوور ویٹ اور اوبیسٹی کا پرابلم ہے, اور موٹاپا کے لیے. تو اب موٹاپا اور اوبیسٹی کا ایسی چیز ہے اس سے کیا ہے معلوم 10 قسم کے پرابلمس آ سکتے ہیں. یہ انگلینڈ کا حال ہے. اس کے بعد WHO کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہیلتھ کے اندر ہونے والا ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کا ہے دنیا میں. آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ یورپ اور امریکہ میں زیادہ پرابلم ہے ڈپریشن اور ہیلتھ کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. مگر خوش قسمتی ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز اور انڈیا میں عام طور پہ ڈپریشن اور مینٹل پرابلم یہاں نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہندوستان یہاں پر ریلیجنس ڈفرنٹ ریلیجنس ہے. خاص طور سے کیا ہے چائنا, جاپان وغیرہ, رشیا میں وہاں پر تصور خدا کا نہیں ہے. اور یورپ اور امریکہ میں خدا کا تصور ہے مگر جو بلیف ہونا چاہیے اسٹرانگ نہیں ہے. ایک سونے والا ایڈوانٹیج ہندوستان میں ملا ہے. کل کے دن اگر ہماری زندگی میں کوئی اگر ناکامیابی اگر ہوتی تو سمپل طریقہ ہندوستان میں یہ ہے, کامیابی اگر حاصل ہوئی تو بولتے کہ میں خود کر رہا ہوں, ناکامیابی حاصل کرے تو اللہ کی مرضی تھی یا ایشور کی کرپا تھی یا جیسس. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ورنہ اگر آدمی اپنی ناکامیابی اپنی دماغ سے اگر لے لیا, ارے بھائی میری غلطی کی وجہ سے میں ناکام اگر ہوا تو ڈپریشن میں چلے گا.
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यूरोप और अमेरिका में जितने मेंटल और साइकाट्रिक सेंटर्स है दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसकी वजह यह है, या तो क्या है मालूम, जो खुदा और गॉड का जो बिलीफ है या तो नहीं है या तो कमजोर है। पर अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान में हर एक रिलीजन में हम ये सोचते हैं जो भी अच्छा करे हम करें, जो खराब हुआ ऊपर वाले की मर्जी थी। और खास तौर पे क्या है मालूम, ये चीजों की वजह से हमारे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये एक चीज है। और सेकंड, अब थोड़े ऐसे चीजें हैं कि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बात क्यों कर रहा हूं। देखिए, अगर हेल्थ खराब हुई तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं मिसाल दे चुका हूं, अगर प्रिवेंशन पे काम करना है तो एक आने का खर्चा है, अगर क्यूर पे काम करने का है तो 16 आने का खर्चा है। ये पॉइंट याद रखना चाहिए। अगर फर्ज करो उसके बावजूद भी अगर आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक रिपोर्ट है हेल्थ केयर रिसर्च क्वालिटी 2002 यूएसए में एक सर्वे हुआ। वो सर्वे के हिसाब से हर 10 पेशेंट का जो इलाज होता है पूरी दुनिया में, 10 में से एक पेशेंट वो दवाखाने की या प्रोसीजर या ट्रीटमेंट की गलती की वजह से क्या मालूम सफर होता है। तो 10 ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल एरर के जो चांसेस है, मैं डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा हूं, अमेरिका और यूरोप में 10 पेशेंट दवाखाने को जा रहे हैं, उनका इलाज अगर हो रहा है तो 10 में से एक में मेडिकल एरर की पॉसिबिलिटी है। मेडिकल एरर का मतलब ये है या तो डायग्नोज सही नहीं हुआ या तो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ और उसकी वजह से पेशेंट को क्या है मालूम प्रॉब्लम हुआ और जान भी जा सकती है। ये बात यूरोप और अमेरिका की है। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर क्या है मालूम और हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्या है, जब अगर बीमारी अगर कम है हम प्रिवेंट करें तो क्यूर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्यूर की जरूरत अगर पड़ेगी तो बदकिस्मती से सब स्पेशलिस्ट से अगर हमारा नाम अगर आ गया तो पैसे के पैसे खराब, टाइम का टाइम खराब और क्या है मालूम जान से भी हाथ धोना पड़ता है। उर्दू में एक मुहावरा है, मैं अक्सर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं कि तबीयत खराब क्यों होना चाहिए, दवाखाने को क्यों जाना चाहिए और इलाज क्यों करना चाहिए और परेशान क्यों होना चाहिए। हैदर खान साहब यहाँ पर है, उन्होंने और मैं दोनों मिलकर कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ले रहे थे। क्या है, हाउ टू अवॉइड द कार्डियोलॉजिस्ट, ये लेक्चर था। आप और हम थोड़े जगह लिए कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। ये लेक्चर किसका था, आपका और मेरा। ये और मैं ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं आना है तो क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के ऊपर बात हो रही थी। तो उर्दू में मुहावरा है कुराड़ी का, कहना ये है, जो कुराड़ी जिससे पकड़ते हैं हाथ में उसको कहते हैं दस्ता। कुराड़ी में दस्ता ना होता तो लकड़ी काटने का रास्ता ना होता। अगर प्रिवेंशन पे हम फोकस करते, बीमार होने के चांसेस कम रहते, बीमार होने के चांसेस कम रहते तो हम दवाखाने को नहीं जाते थे। अगर दवाखाने को नहीं जाते तो अखराजात और जो मेडिकल एरर है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये पॉइंट है। सेकंड वन, अमेरिका में एक सर्वे हुआ 1996 से 2006 तक 4 लाख से 12 लाख लोग मेडिकल एरर के शिकार हुए हैं। यहां तो क्या है, जिस्मानी नुकसान उठाना पड़ा और क्या या तो लोग खत्म हो चुके हैं। 4 लाख से 12 लाख पर ईयर, ये 1996 से 2006 तक 10 साल के बाद। अमेरिका का एक सर्वे है, स्टडी फाउंड दैट 30% ऑफ द केयर इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी अननेसेसरी। अमेरिका जैसा डेवलप एरिया कंट्री है जहां दुनिया के बेस्ट फैसिलिटीज है, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है वो जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल है बाल्टीमोर में। सेकंड हॉस्पिटल है वो मायो क्लिनिक है। कार्डियोलॉजी का नंबर 1 हॉस्पिटल है यूएसए में क्लाइवलैंड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल वर्ल्ड के बेहतरीन हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड के बेहतरीन डॉक्टर्स और वर्ल्ड के जो भी कॉम्प्लिकेटेड और जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होते हैं वो अमेरिका में होते हैं।
और वहां का सर्वे है कि आमतौर पे जो 30% जो पेशेंट का इलाज होता है वो गैर जरूरी है। वो जरूरी नहीं था मगर फिर भी कर दिए। ये डेवलप कंट्रीज की बात चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में और ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी में सर्वे नहीं होते हैं तो उसके ऐसे इस तरीके फिगर्स नहीं आते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में यहां पर चांसेस और बहुत ज्यादा रहते हैं कि मेडिकल एरर्स के और अननेसेसरी ट्रीटमेंट के। ज्यादा मेडिकल एरर्स के चांसेस यहाँ ज्यादा है एक्चुअली। और वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया की इकोनॉमी को संभालता है। 2002 में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक, हिंदुस्तान में जो इलाज हो रहा है पेशेंटों का उसके ताल्लुक से। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है 24% ऑफ इंडियन पेशेंट्स हु टेक ट्रीटमेंट इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्लाइड बिलो द पॉवर्टी लाइन फ्रॉम द अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन मतलब ये है कि हिंदुस्तान में 24% पेशेंट्स का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज होता है, इलाज होने से पहले वो या तो मिडिल इनकम ग्रुप में होता है या हाई इनकम ग्रुप में होता है। जैसा इलाज होता है, बिल पेमेंट होता है, उसके बाद जो माली बोझ आता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो 100 लोग का जब इलाज होगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, या तो मिडिल इनकम, ये अपनी जो इकोनॉमिक स्टेटस है हिंदुस्तान में हर एक कंट्री में हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम। तो जो लोग मिडिल इनकम में है और हाई इनकम में है, इलाज के बाद 24% लोग, ये हर चौथा अमीर आदमी गरीब हो सकता। और इसकी मिसाल है, एक आदमी जो 10 से 12,000 रुपए या 20,000 रुपए कमाता है, अगर कोई न्यूरो अटैक हुआ या कार्डियक अटैक अगर हुआ, अगर कोई बाईपास सर्जरी का मामला है या तो न्यूरो सर्जरी का मामला है, 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता। अगर वो 50 साल में अगर वो उसका सर्जरी हुई, ट्रीटमेंट अगर हुई, तो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक क्या है वो महफूज रहेगा। तो बाकी की जिंदगी खर्चा चुकाने में क्या है वो गुजार देना पड़ेगा आपने। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है हिंदुस्तान के ताल्लुक से। उसके बाद सब में अहम बात यह है, जहां तक सेहत का ताल्लुक है, आमतौर पे वो तनाव के ऊपर रहता। पहला जो मेरा लेक्चर हुआ वो भी मैं बात किया था, उसका ताल्लुक तनाव से, स्ट्रेस से है। और एक रिपोर्ट है ये कि रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट 75% ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर आर स्ट्रेस प्रोन। जितने भी डिसऑर्डर है, इलनेस है हमारे में जो हो रहे हैं, 75% जो बीमारियां हैं वो तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। ये एक ऐसा एरिया है, अगर हम ये तनाव और स्ट्रेस को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो 75% बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और 25% वो शायद हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि तो अल्टीमेटली सेहत और शिफा का जो ताल्लुक है वो अल्लाह ताला से। मगर अल्लाह ताला गाय का कहना भी ये है कि क्या है, हम क्या है, कुछ हमारे जो तदाबीर होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, प्रिकॉशनरी होना चाहिए, वो हम मेंटेन करना चाहिए। तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको का मतलब है माइंड, सोमा का मतलब है बॉडी। तो 75% जो स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो जो है हमारी माइंड और हमारे बॉडी से ताल्लुक है, जो तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। और ये तनाव और स्ट्रेस की वजह से जो 75% बीमारियां आ रहे हैं वो कौन से बीमारियां हैं? इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस के ताल्लुक से, तनफ्फुस के तरफ से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से, आमतौर पे नहीं मालूम है हमारे को। जब इस तनाव में आ जाते, स्ट्रेस में आते तो सांस फूलना, जो अस्थमा के जो पेशेंट है उनको अस्थमा अटैक भी हो सकता है। और सेकंड जो तनाव के तरफ से प्रॉब्लम्स है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट रिलेटेड, जिसको सीवीडी भी कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो तनाव की वजह से। थर्ड है
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के प्रॉब्लम से, पेट के ताल्लुक से भी, ये हमारे को आमतौर से नहीं मालूम है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है वो तनाव की वजह से हो सकते हैं। थर्ड है माइग्रेन हेडेक, जो सिर में दर्द है। आमतौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी को जब काम होता है, जब कॉलेज को स्कूल को जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो उससे पहले क्या एकदम सिर में दर्द होना, माइग्रेन हेडेक वगैरह, ये भी क्या है तनाव की वजह से। और उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और पैनिक डिसऑर्डर है, फोबिया है, घबराना कई सालों से, ये भी तनाव की वजह से। तो मैं नेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूं ये कि जितने भी इलनेस और डिसऑर्डर जो आ रहे हैं 75% वो तनाव की वजह से हो रहे हैं। अब देखिए, खासतौर से हम प्रोफेसर का जो ताल्लुक है, बड़े बड़े जो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं, एक सोल्यूशन को छोड़कर। आमतौर पे जो लेक्चर्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम्स तो हो गया, मगर अब ये प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कैसा करना चाहिए। आज का मेरा जो ताल्लुक है लेक्चर का, उसमें दो चीजें बताना है। एक, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये जो बोलना चाह रहा था, पूरे दुनिया में जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है और हिंदुस्तान में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेंसस का जो डेटा निकला है 2 दिन पहले, हमारी जो आबादी है 121 करोड़। अब थोड़ी चीजें बोलना चाहता हूं। हमारे पास है डॉक्टर्स है 6.5 लाख, नर्सेस है 6.25 लाख। होना कितना चाहिए? मेरे हिसाब से हमारे पास 18 लाख डॉक्टर्स होना चाहिए इलाज के लिए। जो 6 लाख है और 12 लाख डॉक्टर्स, उसके लिए क्या है मालूम, अभी 20 साल ठहरना पड़ता है। जब 20 साल तक ठहरेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन 175 करोड़ हो जाएगी। बोलना ये चाह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हिंदुस्तान में 121 करोड़ लोगों की हेल्थ मेंटेन कर सके। ये पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इदारों की जिम्मेदारी है, जैसे डॉक्टर साहब हम लोग जो काम कर रहे थे, हाउ टू अवॉइड द कार्डियोलॉजिस्ट, हम बैठ के बात कर रहे थे क्यों करना चाहिए। एक बिल्कुल अजब सा दिखता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो बोल रहा है कि पेशेंट मेरे पास नहीं आना तो क्या करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आमतौर पर तकरीबन 20,000 पेशेंट कार्डियक जो आपके पास है, आपके पेरोल में, अब उससे ज्यादा क्या देखेंगे। आपका कहना यह था कि पेशेंट कम करना चाहिए। तो उसी तरीके से हिंदुस्तान का भी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी के बस की बात नहीं है कि क्या सबकी सेहत को मेंटेन कर सके। तो उसके आपसे प्रिवेंटिव केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। और मेरा सोचना ये है कि मेरी जब लड़की रोजरी कॉन्वेंट में फर्स्ट क्लास में जब पढ़ रही थी और लड़का HPS में फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था, तो फर्स्ट क्लास में उसको एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, तो उसमें पढ़ा रहे थे कि ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का किस तरीके से तैयार करना चाहिए। एज ए प्रोफेसर, वो जो फर्स्ट क्लास में जब लड़की मेरी पढ़ रही थी, वो MBA में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो देखिए, ये गैर जरूरी जो एजुकेशन का निजाम हमारे पास है, जो क्रेज है, जो रैट रेस है, तो बिल्कुल क्या है मालूम, इररिलेवेंट है। होना ये चाहिए था कि जब बच्चा पहली क्लास में जब जाता है तो उसको क्या है, सेहत के ऊपर बढ़ाना चाहिए पहली क्लास से, कि क्या हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हम क्या है मालूम, वॉशरूम को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, नीटनेस किस तरीके से। मैं रामायण की बात बोला कि कुरान में ये है कि बाकी आधा दिन है, कुरान में हदीस में पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, मगर हम बाकी के ऊपर नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है। तो बच्चों को वो कंप्यूटर्स वगैरह ठीक है, जरूरत है, कब है वो, जब जरूरत है, जब हमारी जिम्मेदारी थी, तो जो मामला है, सेहत का मामला है, पहली क्लास में होना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक लेक्चर था पब्लिक हेल्थ पे, मैं भी बात कर रहा था, थोड़े डॉक्टर लोग नाराज भी हो गए थे वहां पर। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इदारे ये जिम्मेदारी ले कि जितनी भी पॉपुलेशन है, हम जो पानी पीते अगर वो साफ, हाइजीन और क्लियर पानी अगर पिएंगे तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में आधे बीमारियां दूर हो जा सकती है।
تو وہاں میرا جملہ تھا کہ اگر گورنمنٹ کیا ہے اگر ذمہ داری لے کے صاف پانی کی تو آگے آدھے ڈاکٹر انمپلائڈ ہونے کے چانسز ہے. تو وہ تو جو جیپیز رہتے نا ان کے پاس پیشنٹ نہیں رہے گا. صرف پانی کا ایک معاملہ ہے. تو اس طریقے کی چیزیں ہیں. ہم یہ چیزوں پہ کیا دھیان نہیں دے رہے. ہمارے پاس کیا ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ گیمز وغیرہ جو چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہے واحد چیزیں اس کے اوپر کیا ہے مطلب ہمارا ٹائم زیادہ ہے. تو اب آئیے تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا تو پرابلمس تو بہت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے. سولوشن کے لیے پہلے تو میں دوسروں کے بارے میں بولوں گا کہ وہ لوگ کیا بولے. آخر میں اپنی بات کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے ہم لوگ. ایک ریموٹ اینڈ کرونک ڈیزیز پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک یو کے میں لندن میں انا پول بول کر کمشنر آف ہیلتھ ہے. لندن کے اندر وہ کمشنر آف ہیلتھ ہے. ان کا کہنا یہ ہے انہوں جو اپنی رپورٹ میں انالیسس میں کیے کہ کرونک النس جو ہے یہ بڑے جو بیماریاں ہیں جس میں کیا ہے معلوم اخراجات زیادہ آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بہت لمبا چلتا ہے. ان کا کہنا ہے ریگولر فزیکل ایکسرسائز پوائنٹ نمبر 1 ہیلتھیئر فوڈ اینڈ گریٹر کانٹیکٹ ود دا انوائرمنٹ ریڈیوس دا رسک آف کرونک ڈیزیز اینڈ پروموٹ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو وہ ہیلتھ کمشنر یو کے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرونک ڈیزیز پہ اگر کنٹرول اگر کرنے کا ہے یوروپ کے اندر اور دنیا میں دوسری جگہ پہ ہمارے کو فزیکل ایکسرسائز کرنا چاہیے. جلالی صاحب آپ کے بارے میں اور آپ کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں اور ہیلتھیئر فوڈ کھانے کا جو تعلق ہے اور گریٹر کانٹیکٹ ود انوائرمنٹ جہاں رہ رہے ہیں آزو بازو جو انوائرمنٹ ہے لوگوں سے تعلقات وغیرہ ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. 3 چیزوں کے اوپر ہے تو انشاءاللہ کیا ہے وہ ہماری صحت اچھی رہ سکتی ہے. یہ ہے یہ ہیلتھ کمشنر یو کے کا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر یہاں پر ہے. دنیا میں اگر کارڈیالوجی کی اگر بات چل رہی ہے کہیں بھی حیدرآباد میں یا کہیں بھی تو انٹرنیشنل ادارہ ہے امریکن ہارٹ ایسوسیشن. کیوں یہ بات اس وقت سے بول رہا ہوں پریونشن میں دنیا میں سب میں زیادہ ہارٹ کے جو پرابلم ہیں وہ ہندوستان میں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں انڈیا از اے کارڈیاک پرابلم کیپٹل آف دا ورلڈ. یہ صدر مقام ہے. ہندوستان صدر مقام ہے پورے دل کے بیماریوں کے آگے. بدقسمتی سے پورے ہندوستان میں حیدرآباد نمبر 1 ہے پرابلمس کے اندر. ڈاکٹر یہاں پر ہے. رانچی میں لیکچر ہوا میرا 8 دن پہلے. میں بول رہا تھا کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ حیدرآباد میں. ڈاکٹر 250 کارڈیالوجسٹ حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں. آپ کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملیں گے. اور جو کیپٹن ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ کیپٹن یہاں پر حیدرآباد میں ہے. تقریباً 40 کیپٹن ہے. تو وہاں رانچی میں اسٹوڈنٹس پوچھے صاحب اتنا بیمار ہوتے ہیں. سوال بیمار ہونے کا ہمارے بیمار ہونے کا نہیں ہے. پیشنٹ جو ہے نا پورے ہندوستان سے اور ہندوستان کے باہر سے آتے ہیں. تو ایسا کیسا پتا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ریڈی میڈ گارمنٹ اگر شرٹ خریدنے کا ہے آپ کو چوائس ہے. ایک فلانی جگہ پہ ایک دکان ہے دوسری جگہ پہ 50 دکان ہے. تو آپ کہاں دیں گے 50 دکان کے پاس ہی دیں گے ایک دکان کے پاس نہیں جاتے. تو حیدرآباد ایک ایسی جگہ اور انڈیا میں سب میں چیپسٹ اور ورلڈ کا چیپسٹ انجیوگرام جو ہوتا ہے وہ حیدرآباد میں ہوتا ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے آروگیہ شری کے اندر تو اس میں تو کور نہیں ہو رہا ہے. جیسے نارائن گروداجے جو آیا ہے وہ لوگ کیا ہے تقریباً 6000 میں 5500 میں انجیوگرام کر رہے ہیں. وہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا. تو بولنے کا مطلب کیا ہے مطلب اتنا کارڈیاک پرابلم ہندوستان میں اور حیدرآباد میں ہے. The American Heart Association believes that the basic preventive American Heart Association basic preventive healthcare services should be an integral part of equitable comprehensive healthcare plan accessible to all. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہارٹ کے پرابلمس ہیں وہ کیور سرجری فلانے سے نہیں کر سکتے. سب میں بیسٹ سولوشن یہ ہے پریونٹیو کیئر پہ جانا چاہیے. جو پرابلمس 40 سال 50 سال 60 سال میں آتے ہیں
वो प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन में बोला कि पुष्पवती से जो मेरे ताल्लुकात रहे कार्डियोलॉजी के अंदर डॉक्टर साहब है, और नाम आप भी सुनेंगे देवी शेट्टी, जो चेयरमैन है नारायण हृदयालय हॉस्पिटल के बेंगलुरु में। जब मैं था तो बातचीत हो रही थी कि कार्डियक प्रॉब्लम कैसा हल करेंगे। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, एक वार्ड है, एक पीडियाट्रिक कार्डियक वार्ड है, बोल के कहीं भी नहीं है। जहां मैं वार्ड में गया तो 200 बच्चों का की वहां पर इलाज चल रहा था, छोटे बच्चों का। तो एक बात बोले वो बात ये बोल रहा था, वसु साहब देखिए, मैं जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं हम करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कार्डियक में जितने सर्जरीज होते हैं 20% सर्जरी नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स में होते हैं, 100 में से 20। उनके पास 36 हॉस्पिटल्स है पूरे हिंदुस्तान में। अब यहाँ भी आ चुका है, यहाँ पर एक आउटस्कट्स में है नारायण हृदयालय हॉस्पिटल बोलकर। और क्या बात बोले, ठीक है, प्रॉब्लम है वो इलाज से नहीं है। अगर 1000 पेशेंट है तो मैं इलाज कर दूंगा, मैं अगर कम पैसों में करना है मैं कर दूंगा, मगर मेरी ट्रेजेडी अलग है। वो बोले क्या, देखिए जब मैं प्रैक्टिस वो मणिपाल से स्टार्ट किए थे, वो तकरीबन लेट 40s की एज है उनकी, 50 ईयर्स की एज है। वो बोले कि जब मैं करियर स्टार्ट हुआ मेरा मणिपाल में, जो कार्डियक पेशेंट आते थे मेरे पास, लड़के अपने वालिदैन को लेकर आते थे बताने के लिए, मगर बदकिस्मती ये है अब वालिदैन लड़कों को लेकर आ रहे बताने के लिए। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अपने वालिदैन अपने जो 30 साल लड़का है, 40 साल लड़का है, उसको डॉक्टर साहब के पास लेकर आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, देखिए ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट का भी कहना ये है कि प्रिवेंटिव केयर एक ही है, बस वो कीजिए। और आजकल डॉक्टर साहब वगैरह भी उस पर काम कर रहे हैं कि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंटों को क्या है मरम रोकना चाहिए, वरना ये किसी के बस की बात नहीं है इलाज करना। तो वो अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट वाले प्रिवेंटिव केयर से कुछ पैरामीटर दिए। एक बोले कि तंबाकू सिगरेट नहीं, नंबर 1 आपकी जानकारी के लिए बोला। नंबर 2 हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल पे क्या मालूम कंट्रोल करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। और फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो लोग जो लेबर का काम करते हैं, जो बिल्कुल ही रफ काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, उनको इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं पड़ती। सजेशन ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके प्रोफेशन के अंदर अगर आपके जो एक्टिविटीज है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, भाग दौड़ अगर है, तो बाकी की चीजों की जरूरत नहीं है। जो हमारे को यहाँ पर पब्लिक गार्डन में आना है, इस वजह से आना है कि हमारा जो प्रोफेशन, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे, चंद हाजिर को ठीक नहीं लगेगा। ओल्ड सिटी में थोड़े एरियाज को जाता हूँ, बिल्कुल स्लम के ताल्लुक से है। अगर कोई हाजिर को लोकेलिटी के है तो कोई सीरियसली लेना नहीं चाहिए। चंद साल पहले मैं गया था हाफिज बाबा नगर, मेरे ड्राइवर का घर है जो मेरे पास 20-25 साल काम कर चुके हैं। तो हाफिज बाबा नगर के अंदर इंटर हुआ, गाड़ी रखा, मैं दीवान खाने में बैठे तो होता ना कि हम तक मेहमान नवाजी में कम से कम चाय ऑफर की जाती है। शाम का वक्त है 5 बजे, तो एक लड़का आया, दरवाजे को दस्तक दिया, खोलते क्या है मालूम, ये जो साहिबीन है तकरीबन हालात ये है कि वो क्या है ग्लासेस लेके दरवाजे के पास गए। वो लड़का आया, थर्मास में से एक 4 कप में चाय डालकर चले गए। तो मैं बोला ये क्या है, वो तो नहीं, यहाँ पर हम चाय नहीं बनाते, शाम में एक आधा लड़का चाय देकर चले जाता, सुबह में आता चाय देकर चले जाता। अब हमारी हालत ये है कि चाय तक हम बना नहीं सकते, समझ जाओ, गवारा नहीं कर। दूसरी हालत ये है, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, जो हमारा एरिया है मैं देख चुका हूं, मलकपेट, फैजाबाद, चंचलगुड़ा वगैरह, जो एनआरआई का जो कल्चर है, जो साहिबीन 1 महीना 2 महीने 3 महीने के रहने के वास्ते आते हैं, वो जो खाने का जो किचन है वो आउटसोर्स कर दिया। 8-10 लोग घर में रहते हैं, वो लिस्ट दे देते हैं कि ब्रेकफास्ट में ये आइटम लाना चाहिए, 5 मलेजमी और 4 बच्चे। जब ब्रेकफास्ट सप्लाई होता है तो लिस्ट मेनू का देते हैं कि दोपहर में ये चीज लाना चाहिए और शाम में ये चीज लाना चाहिए। और वहां के औरतों का, मर्दों का ये हाल है कि किचन को तक नहीं जा सकते और खुद का खाना नहीं पका सकते। तो ये अगर लाइफ स्टाइल रहेगा तो मैं ये समझता हूं कि ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कुछ काम आने वाला है। हम हमारी जहनीत को चेंज करना पड़ेगा।
10 मिनट लेता हूँ। ओबेसिटी, ओवरवेट और डायबिटीज ये पैरामीटर्स है। ये क्या है मालूम, अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट वाले दिए। ये देवी शेट्टी से जब बात हो रही थी 2 साल पहले, इसका एक आर्टिकल आया है डेक्कन क्रॉनिकल में, जो बेंगलुरु और हैदराबाद में ये लास्ट ईयर आया था। हेडिंग ये थी, लाइफ हेल्थी टू 150 मस्ट बिगिन इन 2010। हेडिंग ये था 2010 के बाद चलो अहद करें कि हम 150 साल तक जिंदा रहें। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला गॉड हमें जब बनाया है, बनाने के अंदर जो डिजाइन और प्लानिंग है, हम 150 साल जिंदा रह सकते हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी की मेडिकल साइंसेस में 150 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है। इसकी मिसाल चाइना और जापान में है। 100 साल, 125, 130, 135 साल के आदमी आपको चाइना और जापान में मिलते हैं। मगर कहना यह है कि आदमी पैदा होने से जब से ओल्ड एज तक आए तक डेली ये कोशिश करता है कि हमारी जिंदगी कम से कम होना चाहिए। एंड ही पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दैट वी शुड लिव एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी मेहनत क्या है, खराब चीजों के ऊपर, रॉन्ग चीजों पे ऐसी है कि हम उसको 150 को क्या है 120 तक ला देते, उसके बाद 110, 100, 90, 70, अब आजकल क्या है मतलब सिर्फ 60-65 साल में खत्म हो जाए। तो ये क्या है मालूम कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रहे और ये प्रिवेंशन में नहीं जा रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा। तो देवी शेट्टी का कहना यह था कि 150 साल तक जब अल्लाह ताला हमारे जिस्म को प्लान और डिजाइन अगर किया है, ठीक है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। 1 साल में भी इंतकाल हो सकता, 1 दिन में भी इंतकाल हो सकता, मगर जो बनावट है उसके बारे में बात हुई तो उसको क्या है मालूम, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो वो क्या किया है कि अगर ऐसी प्लानिंग, अगर ऐसा डिजाइन हमारे जिस्म का है तो क्या करना चाहिए। नंबर 1 वो लिखा है फूड, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 लव योर जॉब। जो भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, उसको क्या है मालूम आप पसंद करना चाहिए, शौक से करना चाहिए। बी स्पिरिचुअल, लव योर फैमिली, एंजॉय द जर्नी, हेल्थ चेकअप हर 3 महीने 6 महीने को। आजकल ये है कि शुगर का जो मामला है, बीपी का मामला है, आजकल डॉक्टर के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात है आप खुद मालूम कर सकते हैं कि आपका बीपी क्या है, शुगर लेवल क्या है वगैरह। अब आजकल तो थोड़े लोग जिसको एक्सपीरियंस है पल्स रेट और हार्ट बीटिंग भी मालूम कर लेते हैं। तो ये देवी शेट्टी का कहना था। एक मैं कमिश्नर के बारे में बात करा और अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट नंबर 3 नारायण रोजाले का जो चेयरमैन है बोला 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब आखिर में मेरे खुद की बात है, मेरा जो तजुर्बा है कि क्या करना चाहिए। अगर मेरे से अगर पूछे सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये है कि नंबर 1 बी रिलीजियस। हम क्या है मतलब मजहबी होना चाहिए। ये 50 चीजों की जो बात कर रहे हैं, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, अगर आप रिलीजियस अगर रहेंगे तो मेरा टाइम कुरान, रामायण, महाभारत और बाइबल वगैरह पे गुजरा है। हर एक मैं रिलीजियस बुक में देखा हूं, ये नहीं लिखा है कि आप 10 बजे तक 11 बजे तक सोने के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं, और खाने के बारे में क्या है मालूम कहीं भी छूट नहीं है। हम बात कर रहे हैं हुजूर की जो सुन्नत थी, कुरान और हदीस की बात कर रहा हूं। सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला बताया गया है, हमारे पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा खाना रहेगा, दूसरा हिस्सा पानी रहेगा और तीसरा हिस्सा खाली रहेगा। बड़े मौलवी पंडित वगैरह हुए, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, मगर खाने का ऐसा मसला है, इतनी बड़ी कमजोरी है कि हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। पेट खाली रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीज है बी रिलीजियस। सेकंड 1 मेरा जो अपना कंक्लूजन है, 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूं। अदानी साहब देख रहे हैं मेरे को पूरा, तो ये आज लेक्चर के बाहर अगर जाना चाह रहे हैं तो ये चीजें, नंबर 1 रिलीजियस होना जरूरी है, वॉट एवर रिलीजियस भी आप। नंबर 2 मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। अगर मेरे से अगर पूछा जाए
मेंटेनिंग द रिलेशनशिप में मैं लिखा हूं विथ स्पाउस, शोहर और बीवी के साथ, विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, विथ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, विथ कोलीग्स, हम जिसके साथ उठते बैठते, आखिरी में अदर्स। 2 मिसाल दूंगा मैं रिलेशनशिप के अंदर। 50% प्रॉब्लम हमारे स्पाउस से होते हैं, बीवी और शोहर से। सिंपल फार्मूला है, सेहत अगर बरकरार रहना है, जिंदगी में अगर कामयाब अगर बनना है, 2 ही चीज है। अगर जो शख्स के ताल्लुकात घर में अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ अच्छे हो सकते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सिंपल फार्मूला है। बाहर तो बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, बड़े बड़े मिसालें दे सकते हैं, मगर हम जो हमारे घर के हालात है, हमारे ताल्लुकात, हमारी बीवी और हमारे वालिदैन, हमारे रिलेटिव्स के साथ ठीक नहीं है। जब हमारे बेसिक ठीक नहीं है तो दूसरों के ताल्लुकात क्या कर सकते हैं। और एक मिसाल दूंगा मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरान और हदीस में जिक्र है, जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, पड़ोसी के हुकूक के बारे में यह बाकायदा लिखा गया है कि अगर मेरा एक घर है, अगर मेरे घर के पास जो पड़ोसी है, अगर उसके पास पानी अगर नहीं है तो मैं पानी नहीं पी सकता हूं। अगर उसके पास खाना अगर नहीं है तो मैं खाना नहीं खा सकता हूं। अगर उसके पास कपड़े अगर नहीं है तो मैं कपड़े नहीं ले सकता हूं। ये मेरा फर्ज है कि मेरा पड़ोसी कंफर्टेबल होना चाहिए। और हदीस में लिखा हुआ है और कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है कि पड़ोसी कौन है। ये नहीं लिखा हुआ है कि पड़ोसी बाजू वाला मुसलमान होना चाहिए। पड़ोसी का मतलब चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू कोई भी हो सकता है। और एक सवाल ये था कि पड़ोसी आगे कितने घर तक, उसका डेफिनेशन ये है कि ये मेरा अगर घर है, 40 घर ये साइड, 40 घर ये साइड, 40 घर ये साइड और 40 घर नीचे के साइड, ये ताल्लुका। हम अब हमारा घर अगर है, हिस्से में जब घर बन जाता है, अगर सगा भाई भी अगर है तो 10 साल में ताल्लुका खराब है हमारे। सगे भाई से नहीं है। अगर गैर मुस्लिम और गैर मजहब के लोगों से ताल्लुका रहना जरूरी है। अब दूसरों का छोटे अपने भाई के साथ ताल्लुका ठीक नहीं है तो सेहत ठीक नहीं रह सकती इसके अंदर। और नेक्स्ट रिलीजन, रिलेशनशिप और थर्ड इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर मैं लिखा हूं, कंजम्पशन का मतलब दूसरे लोग बोल रहे फूड हैबिट, क्या खा रहे हैं। मैं अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहा हूं कंजम्पशन। जो भी चीज अपने जिस्म के अंदर जा रही है वो कंजम्पशन है। खाना, पानी और ऑक्सीजन, जो भी चीज। और क्या है, ये शुआएं हैं, सूरज की शुआएं। सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाते दिलाने साहब आप भी फरमाते विटामिन डी वगैरह, वो भी एक कंजम्पशन है। आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या है सूरज से शुआएं कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वगैरह। ये कंजम्पशन का जो मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू कंज्यूम, आप क्या खाते हो वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है हाउ मच यू कंज्यूम, आप कितना खाते हो वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, हाउ फ्रीक्वेंटली यू कंज्यूम, कितने टाइम पे खाते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू कंज्यूम एंड स्लीप, आप रात के खाने में और सोने में डिफरेंस कितना है वो भी क्या मालूम इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब की जगह ऐसी एक मरतबा मोहतरमा आए थे तो बोले कि ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ओवरवेट का प्रॉब्लम है, वजन कम करना चाहिए और डाइट के आपसे कुछ प्रिस्क्राइब किए। तो होता है ना आमतौर पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में क्या आप सुबह में उठिए, एक अंडा उबला हुआ वो जल्दी निकाल लेना चाहिए और एक इडली खा सकते, एक कप क्या है कॉफी पी सकते, एक टोस्ट ले सकते, फलाना हुए वगैरह पूरा अच्छी तरीके से समझा दिए। मोहतरमा ये पूछे, ये सुबह में बोले ये नाश्ते से पहले खाना है या नाश्ते के बाद खाना है? तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्चुअली नाश्ते के बारे में समझा रहे थे तो मोहतरमा बोले कि ये सूप डॉक्टर साहब सो अच्छा है, अगर ये कब खाना नाश्ते से पहले खाओ या नाश्ते के बाद खाओ। और चौथा पॉइंट है इंप्रूव योर स्लीप। सिंपल तरीका है कि 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जो एक हिस्सा 8 घंटे का है वो सोने के बारे में, आराम करने के बारे में, और दूसरा 8 घंटे का जो हिस्सा है वो क्या है मतलब अपना जो कारोबार है, नौकरी पेशा वगैरह वो है, और बाकी का 8 घंटे काम है वो क्या है मालूम, घर के जो भी चीजें हैं समझो वो करना चाहिए, अपने फैमिली के साथ देना चाहिए वगैरह वो। तो 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 16 घंटों का दारोमदार इसके ऊपर होता है कि आप 8 घंटे की
नींद आने के वास्ते गोली खाना पड़ता, बगैर गोली के नींद नहीं आती। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। लास्ट है फिजिकल एक्टिविटी। अब वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप हैं, एक बात बोलना चाह रहा हूं कि हाल में वो मैं यूरोप गया था, तो पेरिस में लास्ट ईयर, आपको बोलना चाह रहा हूं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हिंदुस्तान का। डिप्रेशन, पागलपन यूरोप और अमेरिका में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो हार्ट का ताल्लुक यहां है, हर एक चीज ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर रहता है। तो खून का जो दौरान अगर ब्रेन से अगर जाएगा तो सेल्स क्या है मालूम, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो है ये कि फर्क कीजिए, 5 मंजिला बिल्डिंग है, जो वाटर पंप है 3री मंजिल पे लगा हुआ है, पानी नीचे आने का से तकलीफ नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होता है, 4थे और 5वें फ्लोर पे पानी जाना हो तो तकलीफ होती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है मालूम है, जब हार्ट यहाँ पर है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाना है तो थोड़ी तकलीफ होती। जो सर्कुलेशन नीचे रह सकता, ऊपर नहीं रह सकता। तो पूरी दुनिया में या तो आदमी ठहर कर रहेगा या तो सोकर रहेगा। अगर सोकर अगर रहेगा तो वो क्या 180 डिग्री पे रहेगा। तो क्या है, हार्ट क्या है मालूम, बराबर रहेगा, सिर इधर है, पैर इधर है, तो दौरान रहता रहेगा। मगर योगा और नमाज में ऐसी खुसूसियत है जहां पर क्या मतलब ब्लड का सर्कुलेशन डायरेक्टली दिमाग पे पहुंचता है। इसकी वजह यह है, अब पहले मैं नमाज की बात करूंगा। नमाज में जब सिजदे में जाते हैं तो सिर नीचे रहता, हाथ ऊपर रहता। तो इसका जो खून का दौरान है, डायरेक्ट इसका असर क्या है, ये ब्रेन पे पहुंचता है। डॉक्टर, ब्रेन पे पहुंचता है। अब क्या है मालूम, अगर एक आम मुसलमान अगर 5 दिन अगर नमाज पढ़ेगा तो इसका ब्लड सर्कुलेशन क्या है मालूम, ये दिमाग पे पहुंचेगा। और क्या आमतौर पर बोलते हैं, जो नमाज पढ़ने वाला है उसके चेहरे पे नूर और रोशनी होती है। वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है ना, तो चेहरे पे आता है, तो उसके तरफ से क्या है मालूम, पूरे सेल्स एक्टिव होते हैं। सवाल नमाज का नहीं है। योगा और मेडिटेशन में थोड़े ऐसे आसन है, वो जिलानी साहब बताएंगे, समझ जाओ। ऐसे आसन है जहां पर हार्ट का पोजीशन ऊपर रहता, ब्रेन का पोजीशन नीचे रहता, नमाज के अलावा भी। और ये क्या है मालूम कि अल्लाह के फजल से क्या है मालूम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये जो कल्चर है हिंदुस्तान में, ये योगा का है, आसन का है, मेडिटेशन का है, नमाज का है, ये यही है। वो 32% से लोगों को नहीं मिला। तो उसके से ज्यादा लोग डिप्रेशन में है और ज्यादा से ज्यादा लोग पागलपन में है। और वहां पर जो सेंटर्स है, वहां पर मेंटल सेंटर, साइकोलॉजिकल सेंटर, उनकी सेवा बढ़ रही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हमारे जो बेसिक्स है, हमारा जो योगा, मेडिटेशन, नमाज वगैरह, ये चीजों को अगर हम क्या मालूम मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह क्या मालूम सेहत हमारी ठीक रहेगी। और आखिरी में जो स्लाइड में लिखा हो, मैनेजिंग माइंड एंड बॉडी, मैनेजिंग माइंड एंड बॉडी, अगर प्रिवेंटिव केयर पे जाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बीमारी का जो ताल्लुक है नफ्सियात से, आमतौर पे आधे पेशेंटों से ज्यादा का जो ताल्लुक है, रात में दावत को अगर जाकर है, कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पहला जो दौर है वो हार्ट के ऊपर ही जाता है। इस तरीके से एक क्या मालूम ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं बीमार हूं। तो मेरा सोचना ये कि बॉडी से पहले हम दिमाग को तंदुरुस्त रखना चाहिए। अगर दिमाग अगर तंदुरुस्त अगर रहा, माइंड अगर तंदुरुस्त रहा, तो पूरे आर्गन सही काम करते समझ। तो आखिरी प्रिवेंशन ये है, मैनेजिंग माइंड एंड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।